Hello, guys. Thank you very much for watching us on Ali Azim Services channel. And as you know, that we try bring in the best of the material and the best of the people from the industry for all of you. And the people we have brought today, they are pretty renowned, the popular, obviously, people, and they are working in this field for many, many years. And they have brought a product that is needed by the Pakistani community because the product is not so costly, and there are great benefits of the products as well. So we'll be talking about that later. लेकिन सबसे पहले ये है कि obviously हमारे चैनल के जरिए से जो आप लोगों को देखते हो सुनते हो, इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हम जो प्रैक्टिकल लोग इंडस्ट्री के आपके सामने लेके आए और वो प्रैक्टिकल लोग ही आपको प्रैक्टिकल बात बता सकते हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल कि ऑब्वियसली जो एक लेमैन है ऑब्वियसली वो आए या जिसका इंडस्ट्री में कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो आके आपको चीजें समझाए, ये बहुत मुश्किल बात है. तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हमारे आज के जो पैनलिस्ट हैं, ऑफ कोर्स उसमें उस्मान है और मैम अभी हैं ऑब्वियसली, और थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू. एंड ऑफ कोर्स आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक बोथ ऑफ यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उसके बाद मैं अपने क्वेश्चंस पे आता हूं प्लीज. For sure. Thank you, Azim, for the introduction. Myself, Abhiruchi, and I work with M College of Canada as a recruitment manager for Middle East as well as Pakistan. I started my career like 10 years ago and have been working into the same industry, keeping in tab, bringing in new information for the students has been a top priority for me, just to ensure that people back home are getting the most of it. And my name is Usman Tahir, and I have joined as a relationship manager in M College, and I'm looking after the market of Pakistan and Middle East. I have also worked in this industry for around about 5 to 6 years, and previously I was taking care of different markets. Now in Canada, I've joined M College and taking care of Canadian and Pakistan markets. Oh, yeah. And one more thing that when the youngsters like you, they come in the industry, there is a great feeling and the positive vibes. They are really, coming to industry, and the positive vibes, that is so much important for the improvisation of our educational industry. So once again, I really feel pleasure introducing both of you. But one thing is quite sure, that the people, whoever they are listening you, they're watching you, उनके लिए एक बहुत जबरदस्त मैसेज है कि इंटरनेशनल एजुकेशन इज एन इंडस्ट्री, और एज यंगस्टर आप भी इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो जिस तरह से ये दो लोग ऑब्वियसली बैठे हैं और दे आर रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल एजुकेशन ऑल द वे फ्रॉम कनाडा. तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं. आई एम गोना यूज द मिक्स लैंग्वेज, क्योंकि ये भी हमारा गुड लक है कि दोनों लोग जो हमारे साथ एम कॉलेज से हैं, मॉन्ट्रियल से, कनाडा से, ये obviously उर्दू में भी आंसर दे सकते हैं. और actually the Canadian government has been the more supportive government than any of others in the world, I would say. अच्छा, मुझे बताइएगा, जो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है हमारे पास साड़ी कम्युनिटी से, इंडस्ट्री से, आपके लिए भी काफी हार्ड होगा इसको रिप्लाई करना, लेकिन आई बिलीव कि कोई sort of speculations in the guess आता है, बॉर्डर्स कब खुल रहे हैं कनाडा के? बिल्कुल सही कहा आपने. It will be very very hard for us to answer that, but we really don't know. We are seeing progress. जैसे पहले स्टेज 1 ओपन हुआ था, जिसमें कि essential services had opened. फिर हमने देखा कि मिड अप्रैल में we saw कि स्टेज 2 ओपनिंग हुई, जिसमें कि we further opened a few other things. Public gathering of 10 people started happening and so on. Abhi kal, tomorrow, Friday ko, we are expecting them to open stage 3 as well, wherein we expect many more other things to open, such as recreation, gathering of 50 people and more. So वो सब चीजें हैं. So it's not that we are not progressing. We are progressing for sure. From the medical front as well, we see कि vaccinations के लिए progress हो रहा है. Vaccination progress का testing has reached stage 4. So we are expecting things to come in, but
again, for September, we really don't. We actually are not in a position to say anything right now. Hopefully, fingers crossed, borders should Yeah. open, students should come in, we should see the campus again hustling and Oh bustling. yeah, yeah. But right now, अभी कुछ भी नहीं कह सकते. That's good. But मुझे लगता है अभी कि कनाडा will be the first country to open the borders for international students. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तो मैं बहुत हॉरिबल और टेरिबल न्यूज़ सुन रहा हूँ कि ये जून 2021 तक जा रहे हैं borders. But Canadian government, I mean, they're going along pretty well, and they I mean reassured कि वो स्टूडेंट्स को देखना चाहते हैं कनाडा में और यूनिवर्सिटीज को भरा देखना चाहते हैं एंड दे द प्रो एजुकेशन कंट्री ऑब्वियसली. अच्छा, अब अभी मूव करते हैं एम कॉलेज की तरफ और बहुत द फ्लरी ऑफ द क्वेश्चन आपकी तरफ आ रही है. मैंने चूंकि इंट्रोड्यूस करवाया था अपने ग्रुप्स में कि मैं एम कॉलेज को लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पे, तो उन्होंने पूछा है एम कॉलेज मॉन्ट्रियल में है तो बीसी में, टोरंटो बीसी जो टोरंटो है और ब्रिटिश कोलंबिया है उसको छोड़ के मॉन्ट्रियल में क्यों आना चाहिए अभी, स्पेशली आप इसको रिप्लाई कीजिए कि क्या एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट को जब वो एम कॉलेज में आता है टोरंटो को और ब्रिटिश कोलंबिया को छोड़ के. We do agree that British Columbia as well as Toronto have been the hottest destinations for students. But if you go by the student data itself, Montreal has been able to keep it up as amongst the top destinations as well. Not only that, world ranking में QS की तरफ से जब world ranking हुई थी, Montreal has consistently been ranked amongst top 5 student destinations in the world. Wow. Not only in Canada but the world. And of course there has to be a reason behind it because QS uses certain parameters to do their ranking. Starting with the first one, जो कि इनका parameter होता है कि affordability. Yeah. So Montreal is way more affordable in comparison to Toronto as well as Vancouver. Number one, tuition fee. Tuition fees of all colleges in Montreal are regulated by the government itself. Again, gives them an edge over any other place in Canada. Secondly, is your रहने का खर्चा. बस students आते हैं, रेंट के लिए होता है, ग्रोसरी होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इन Montreal, it's very low as compared to your other two cities, in fact. Now, if I have to talk about अब बच्चा आ गया, उसके पास रहने के लिए जगह हो गई, खाना पीना हो गया. What is the next thing that he wants to look for is job. So, if this is not me saying, you go and see jobbank.gc.ca, which is the official government website for jobs. You will find the number of jobs in Ontario, number of jobs in British Columbia. Add both of them is the number of jobs available only and only in Montreal. Wow, that's great. So Quebec has always made itself at par or above the other cities when it comes to the facilities that it has to provide to the international students especially. So Bell, जो कि यहाँ का टेलीकॉम जाइंट है, उनके headquarters is in Montreal. Bank of Montreal is amongst the top 5 banks in Canada. Bombardier, जो कि which is one of the biggest manufacturing unit, which manufactures all our public transports in including your metros, your buses, your lifts, has its manufacturing unit in Quebec. Having said that, Quebec is the second biggest port. So supply chain is again one of the biggest things that it has to provide. Canadian Army sits out of Quebec. Okay. So it has many job opportunities. No, I think so. सबको screen share हो रही होगी. जी, screen share हो रहा है, exactly. इसके अंदर जो हम basically program offer कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये 6 प्रोग्राम हैं जो कि हम ऑफर कर रहे हैं इस टाइम पे. इसके अंदर जो हमारे पहले 2 प्रोग्राम हैं, बिजनेस मैनेजमेंट एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उन स्टूडेंट्स के लिए ऑफर होते हैं जिन्होंने अपनी 12th ग्रेड पाकिस्तान से कर ली होती है, जिन्होंने अपना हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अपने ले लिया होता है पाकिस्तान से.
Great. ये दो प्रोग्राम है जो कि नॉर्मल स्ट्रीम में है, और यही प्रोग्राम जो दो हैं जो कि फास्ट स्ट्रीम में भी ऑफर होते हैं, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए ऑफर होते हैं जिन्होंने अपनी 16 ईयर्स की या जो अपना बैचलर्स पाकिस्तान से कंप्लीट कर लिया होता है। जो फास्ट ट्रैक होता है वो बेसिकली 1 ईयर का प्रोग्राम है और ये 2 सेमेस्टर्स में होता है। जो हमारे पास अदर प्रोग्राम ऑफर होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, उसमें मल्टी मीडिया इंटीग्रेशन है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। ये Okay. नॉर्मल स्ट्रीम में ही ऑफर होते हैं और ये 2 ईयर्स के प्रोग्राम है, और इनकी जो फीस है वो 29,000 है जो कि पूरे कोर्स की है, 29,800 टू बी प्रिसाइज। उस्मान, ये 29,800 जो है वो कंप्लीट कोर्स है, जितने साल का भी होगा, 2 years का? बिल्कुल, ये पूरे 2 साल की बिल्कुल ये 2 ईयर्स Okay. का प्रोग्राम है, और ये 2 ईयर्स Fine. के प्रोग्राम की ही फीस लिखी है अगेंस्ट ईच कोर्स। अगर जो 1 साल वाला है जिसका बिजनेस मैनेजमेंट है उसके अगेंस्ट हाँ। 14,852 लिखा हुआ है, तो ये इनके फुल कंप्लीट प्रोग्राम की फीस लिखी हुई है कि आपने 1 साल की फीस इतनी देनी है, तो यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। अगर हम इसके बात करें एलिजिबिलिटी की, तो हमारे प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी को इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ईजी है फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट स्पेशली, कि अगर पाकिस्तान से एक स्टूडेंट ने 12th ग्रेड जिसने की होती है और जिसने 50% मार्क्स ओवरऑल लिए हुए हैं, तो वो अपना बिजनेस प्रोग्राम के लिए भी बिल्कुल एलिजिबल बनते हैं। ठीक। लाइक दे हैव स्टडीड द बिजनेस, अपने जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईकॉम किया हुआ है पाकिस्तान से, ठीक है, इनके लिए बहुत ज़्यादा वो अच्छी ऑप्शन है कि वो इस प्रोग्राम में जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको बिजनेस की नॉलेज होती है और वो आगे फर्दर इन डेप्थ बिजनेस के मतलब ही पढ़ेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है उसके लिए। इसमें जो आर्ट्स चाहिए वो सिंपल 6 ओवरऑल चाहिए विद नो बैंड लेस देन 6, जो कि अब एसटीएस की भी रिक्वायरमेंट है, जो कि बहुत ईजी है। Oh yeah. ओके, थैंक यू सो वेरी मच। और आपने देखा कि इससे जो हैंडसम और फ्लेक्सिबल डील, खासकर जो 4 ईयर बैचलर स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने पीजीडी के लिए अप्लाई करना है, ऑब्वियसली इससे हैंडसम डील पूरे कनाडा में आपको नहीं मिलता है। और ये ऐसा एरिया है मॉन्ट्रियल या क्यूबिक में जहाँ पे ये एक फैक्ट है, ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स ऑफ कनाडा, आपका वीजा रेशियो ऑब्वियसली काफी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। और दूसरा ये होता है कि यहाँ पे जैसे अभी ने बताया कि अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखते हो, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करता है, $800 पर मंथ आपको मिलता है, और वही आपके एक्सपेंस को कवर अप कर लेता है। तो thank you really very much for both of you that you guys extracted time from the busiest schedule of your life, and I believe कि students के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। थोड़ा सा obviously lengthy हमारा interview जा रहा है, तो what I've decided is कि मैं इसको 2 parts में obviously show करूं लोगों को, जो कि बहुत handsome और flexible deal है। I believe जो students सुन रहे हैं they should come forward, और कहीं अगर समझ में नहीं आता है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अभी का भी मैं नंबर, उस्मान का भी नंबर ऑब्वियसली शेयर कर दूंगा, ऑब्वियसली लिंक्स भी शेयर कर दूंगा, और लोगो ऑब्वियसली एम कॉलेज पे भी आएगा। सो आपको जैसे वी हैव अ ग्रेट क्रेडिबिलिटी, आप 14 साल से मुझे जानते हो सारे सुनने वाले, तो आई बिलीव कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, लिविंग स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और गवर्नमेंट सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आउट क्लास आपके लिए ऑप्शन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें जो अक्सर लोग आते हैं जो आईटी बैकग्राउंड के होते हैं, 4 ईयर आईटी डिग्री उन्होंने किया होता है, उनके लिए भी ऑप्शन है। और आप देखते हो जो कॉमर्स पढ़ के आते हैं उनके लिए भी ऑप्शंस हैं। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड इज कि इसको कंसिडर कीजिए, और आई थिंक दिस इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू। जैसे बताया गया कि इस चीज को जो कॉस्ट है, अब आप यही प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे, आपको कभी भी 1 साल में 25,000, 26,000 या $27,000 से कम ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली वही चीज कनाडा में अगर आप पढ़ रहे हो $14,500 या $15,000 में, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। सो यू शुड रिकंसिडर इट ऑफ कोर्स। और देखना है जो लोग मेरे साथ इन कांटेक्ट हैं जिनके कनाडा में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये बेहतरीन ऑप्शन है, और दीज आर द क्रेडिबल पीपल, क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन, और आई बिलीव यू गाइस कैन कंसिडर इट। और यहाँ आपका वीजा रेशियो मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आप क्यूबिक के लिए अप्लाई करते हो, दैट इज रियली स्मार्टर एंड हैंडसम। थैंक यू फॉर बोथ ऑफ यू, और आपने टाइम निकाला दोनों ने।